Assalamu alaikum class. Sophia Riaz here. This is second lecture of Introduction to Political Science second for BS Political Science second semester. Today our topic is democracy. The word democracy is derived from two Greek words, demos, which means the people, and kratos, which means the rule. So we can say that democracy means rule of the people. Various philosophers define democracy in various words. Aristotle defined it as the rule of mob. Basically, he disliked democracy and condemned it. In the words of Seeley, democracy is a government in which everyone has a share, while Bryce says that democracy is a form of government in which the ruling power of a state is largely vested in the members of the community as a whole. And in the last, Abraham Lincoln defined democracy as a government of the people, by the people, and for the people. Students, we know that in Pakistan there is a democratic form of government. डेमोक्रेसी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इसका मतलब है जमहूरियत, यानी अवाम की हुकूमत, लोगों की हुकूमत, रूल ऑफ मेजॉरिटी, रूल ऑफ मॉब, ऐसी हुकूमत जिसमें मेजॉरिटी लोगों का शेयर हो। यानी आप कह सकते हैं कि लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में हिस्सा ले रहे होते हैं, लॉ मेकिंग में और गवर्नमेंट के अदर तमाम जो प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, उनमें लोगों की मेजॉरिटी जो विल है वो शामिल होती है। अब वो किस तरह से होती है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें आप देखें कि डेमोक्रेसी आपको क्लियर हो गया। अब्राहम लिंकन की बहुत मशहूर ये वर्ड्स हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी लोगों की हुकूमत होती है, लोगों की तरफ से होती है और लोगों के लिए होती है। यानी लोग रूल करते हैं, लोगों के लिए ही रूल करते हैं और लोगों की तरफ से रूल करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि किस किस तरह डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करती है। तो उसके लिए हम अपनी आसानी के लिए इसकी काइंड्स को देखेंगे। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली देयर आर two kinds of democracy, direct and indirect democracy. First kind is direct or pure democracy. We can also say direct democracy as pure democracy. When the people can directly express their will on public matters in a mass assembly rather than through their representatives, it is called direct or pure democracy. We can also say it a participatory democracy. This type of democracy can exist in states which are small in area as well as population. It is then physically possible for the people to assemble in a mass meeting to make laws, decide policies, elect public officials, and settle other problems of the state. But such a mass assembly is not possible in large country states. Historically, such a small state existed in ancient Greek, which called polis, or we can say city-state. In modern times, we have some examples of direct or pure democracy in the small cantons of Switzerland. In these cantons, the whole adult population of few hundreds assemble at one place on Sunday afternoon and decide their common affairs and adopt their policies by voice vote. Students, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, जैसा कि इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इसमें लोग जो हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे तो आप
ऑटोमेटिकली हमें पता है कि बड़ी स्टेट में जो कि एरिया और पॉपुलेशन में लार्ज स्टेट्स हैं वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आबादी 20-22 करोड़ से ज़्यादा है, तो तमाम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के प्रोसेस में, गवर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पॉपुलेशन की तादाद ज़्यादा है। हाँ, ये जो टाइप है ये उन स्टेट्स में पॉसिबल है, एप्लीकेबल है जहाँ पर तादाद जो है लोगों की, उनकी पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ ये एप्लीकेबल है। और बड़ी स्टेट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल बताई है कि माज़ी की एक एग्जांपल मैंने दी कि ग्रीक सिटी स्टेट को आप कह सकते हैं दैट वाज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। एंड मॉडर्न टाइम्स में स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटोन्स हैं जो कि स्मॉल कैंटोन्स हैं, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है। वहाँ लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं एवरी संडे आफ्टरनून को, तमाम लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं है, इसलिए उनके लिए पॉसिबल है कि वो सब इकट्ठे हों और डिस्कशन से कॉमन ऑफ मैटर्स जो हैं उनको डिस्कस करके पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं और वॉइस वोट देकर पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है या उन पर डिस्कशंस की जाती हैं। तो सेकंड काइंड जो है इस डेमोक्रेसी की, दैट इज़ इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। When the will of people is formulated and expressed through a small body of persons elected by the people as their representatives to make laws and govern the country, it is called an indirect or representative democracy. It is the modern form of democracy and has evolved in Western Europe during the last 2 centuries. Like direct democracy, representative democracy also accepts the sovereignty of the people, which, however, is expressed not directly but indirectly through their delegates or representatives who act as their trustees. It is based not on participation but on representation. This can be ensured by means of universal franchise, popular electorate, frequent elections, enforceable popular responsibility of the representatives, and the demand that they should reflect the will of the people during their tenure of office. Students, पाकिस्तान आपके सामने आपका मुल्क एक एग्जाम्पल है जिसमें ये सेकेंड काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तान एक लार्ज स्टेट है इन वाया पॉपुलेशन एंड एरिया। area wise, population wise, Pakistan is a large state, so here indirect और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एग्जिस्ट्स। आप देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं आप लोग वोट देकर अपने बिहाफ पे अपने नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्ट करते हैं। जब आप वोट देते हैं आप प्रोविंशियल असम्बली का एक मेंबर जो है उसको वोट देते हैं और नेशनल असम्बली जो कि सेंट्रल लेवल असम्बली है उसके नुमाइंदे को वोट देते हैं। तो वोट देकर आप अपने बिहाफ पे अपना एक नुमाइंदा जो है वो असम्बली में भेजते हैं। चूँकि करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो असम्बली में जाके बैठ नहीं सकते, डिस्कशंस नहीं कर सकते, पॉलिसीज़ जो हैं वो तय नहीं कर सकते, इसलिए लोग क्या करते हैं अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुन के वो असम्बली में भेजते हैं जो उन लोगों की बिहाफ पे इनडायरेक्टली वहाँ जाके काम करते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो आपके नुमाइंदे हैं जब वो असम्बली में बैठ के रूल कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप ही रूल कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने हिस्से की अथॉरिटी, अपने हिस्से की पावर, अपने राइट्स जो हैं वो सरेंडर करके अपना एक नुमाइंदा जो है अपने हिस्से की अथॉरिटी एज अ सिटीज़न ऑफ स्टेट, जो अथॉरिटी आपको स्टेट देती है वो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को देकर असम्बली में भेजते हैं।
तो वो आपके नुमाइंदे कहलाते हैं। आपके बिहाफ पे उनकी जो डिसीजंस होती हैं और आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के जो डिसीजंस होते हैं, जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, इट मीन्स इनडायरेक्टली आप वो डिसीजंस ले रही हैं, आप वो पॉलिसीज़ बना रही हैं। सो here is the both concepts are clear of direct or pure democracy and indirect or representative democracy। दोनों सूत्रों में रूल जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का ही है। फर्स्ट टाइप में क्या है कि स्मॉल एरियाज़ और स्मॉल पॉपुलेशन में जो है वो डायरेक्टली लोग जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का नाम भी दिया गया। जबकि सेकेंड टाइप जो कि लार्ज स्टेट्स में एप्लीकेबल है वो है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां लोग ज़्यादा तादाद में होने की वजह से डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।